The fourth term of a GP is the square of the second term. The square of second term. And the first term is -3. Then we have to find the seventh term. T4 की बात हो रही है, that means AR raised to the power 3 AR T second का whole square, then AR cube is equal to A square R square. ठीक है, देखो A से A कैंसिल, R square से R cube, that means R is equal to A. If A is equal to -3, implies R is also -3. Then T7 is equal to AR6, which is -3 raised to the power 6, which is -3 raised to the power 7. ठीक है, तो it's negative, and 243 multiply with 3, that means 6 7 40. Two 43. Uh, 243. 600 1200 732. Any query? Two 187. Oh, it's 729. Yeah, 2187. My mistake. 729. Sorry. क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया, फाइन, कोई बात नहीं, दोबारा हो गया. Any query from 11 to 20? Any query from 11 to 20? Question number 71. Sorry, 11, my mistake. 8th. अच्छा, अभी भी रह गया है क्वेश्चन नंबर 10 तक. और कोई क्वेरी क्वेश्चन नंबर 8 के अलावा? सी क्वेश्चन नंबर 8. √7, √21, third root of 7. Sorry, it's thrice of √7. N times. Find the sum of, indicate number of term in each of the geometrical progression in exercise 7 to 10. सम फाइंड करना है, ठीक है. तो देखो पहले तो इसको देखो, √7, √3, √7, √3 square √7, and so on. Then A is equal to √7 and R is equal to √3 √7 divided by √7, which is becomes √3. √3 is 1.732, which is greater than 1. Implies
Sn is equal to a r raised to the power n minus 1 divided by r minus 1, where r is greater than 1, implies Sn is equal to a कितना है हमारा √7, r कितना है √3 raised to the power n minus 1 divided by √3 minus 1, implies Sn is equal to √7 √3 raised to the power n minus 1. देखो √3 + 1 क्रिएट तो किया जा सकता है, बट स्टिल हम आंसर चाहे तो यहाँ छोड़ सकते हैं, और अगर इसके आगे लेके जाना चाहते हैं तो √3 + 1 से रेसिप्रोकल कर दो तो नीचे आ जाएगा 2, तो √7/2 को अलग कर दिया, उसके बाद में √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 raised to the power n + 1 एंड माइनस √3 minus √3 raised to the power n minus 1. तो आंसर का फॉर्मेशन क्या है ये तो आंसर शीट देखने में मालूम चलेगा, ठीक है। उन्होंने आंसर को यहीं पे छोड़ दिया है। बुक का आंसर ये है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, नाउ एनी क्वेरी फ्रॉम 1 to 10? एनी क्वेरी फ्रॉम 1 to 10? Any query from 1 to 10? Now 11 to 20. बच्चों ने 11th पूछा है एक तो। Any query other than 11? 17 ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11, evaluate summation from k is equal to 1 to 11 2 plus 3 raised to the power k. What is the meaning of summation? समीशन का सेंस ये है कि जितनी बार उसको दिया गया है, लाइक 1 to n दिया हुआ होता तो हम इस टर्म को n टाइम रिपीट करते हैं और k की वैल्यू चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये आएगा 2 + 3 raised to the power 1 plus 2 + 3 raised to the power 2 एंड सो ऑन, प्लस 11th में हमारा आएगा 2 + 3 raised to the power 11। 2 वाली टर्म्स को अलग कर लो, 11 times plus 3 raised to the power 1, 3 raised to the power 2 and so on, 3 raised to the power 11. 2 11 times, that means 2 multiply with 11 या 11 multiply 11 times 2 plus इसका a3 है, r हमारा क्या है 3 है, which is greater than 1, that mean कौन सा फॉर्मूला आएगा ये वाला, तो 3 raised to the power 11 minus 1 divided by 3 minus 1, 22 plus 3 multiply with 3 raised to the 3/2 multiply with 3 raised to the power 11 dot 1, not dot 1 minus 1। 3 raised to the power 11 कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ टास्क है, बट हाँ इफ यू वांट टू डू तो आप कर सकते हो, वरना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। आपकी बुक का आंसर भी यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17,
14 भी है, ओके 14, 17, 19, 18, 20, तो बेटा पूरी पूछ लिया आपने तो सारों ने। क्वेश्चन नंबर 14, the sum of the first three terms of a GP is 16 and the sum of the next three terms is 128. Determine the first term, the common ratio and the sum of n terms of the GP. Fine. पहले ये कॉपी कर लो because I have to be up that. बैठ जा 10:30 पे मैं क्लास बना रही हूँ। हो गया कॉपी? क्वेश्चन 14, फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम उन्होंने 16 और 128 नेक्स्ट थ्री टर्म्स का बताया है। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स हमने ले ली। लेट जीपी इज a comma ar square comma ar cube comma ar raised to the power 4 comma ar raised to the power 5 and so on. फर्स्ट थ्री टर्म्स का एडिशन बोला है a plus r square is equal to 16 एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स का बोला है ar cube ar raised to the power 4 plus ar raised to the power 5 is equal to 128. a कॉमन आ रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2. a common 1 plus r square is equal to 16 from equation 2. ar cube common, that means 1 plus r square is equal to 128, implies ar cube 1 plus r square divided by a 1 plus r square is equal to 128 divided by 16. Sixteen 128. If I'm not wrong, 8 times implies r is equal to 2. Then from equation 1, a 1 plus r square is equal to 16. Then a 1 plus 2 square is equal to 16. Wait a minute, let me refill my ink. Two square, that means 4, 6, 7. Is it correct? Let me see. Let me check. Yeah, it's 16 by 7 and 2.
implies Sn, since r is greater than 1, Sn is what? ar raised to the power n minus 1 divided by r minus 1, where r is greater than 1. Implies Sn is equal to a is 16 by 7, r is what? 2 raised to the power n minus 1 divided by 2 minus 1, where r is greater than 1. There is no need of that. Implies Sn is equal to 16 by 7, 2 raised to the power n minus 1, because 2 minus 1 is 1. If I'm not wrong, the answer is correct. Yeah, it's correct. Now question number 17. If the fourth term, 10th term and 16th term of a GP are x, y, z respectively, then prove that x, y, z are in GP. Question number 17. T4, T10, T16 are x, y, z. Where is that question? 4, 10, 16, x, y, z. Fine. Obviously, T4 that means AR cube, T10 that means AR raised to the power 9, T16 that means AR raised to the power 15. Then we have to prove x, y, z are in GP. Implies what we have to prove, that is y square is equal to xz. हमें ये लाना है, ठीक है? Y square is equal to xz. Then T4 dot T16 दोनों को मल्टीप्लाई करो, then AR cube dot AR raised to the power 15, which is a square r raised to the power 18, which can be write AR raised to the power 9 whole square. It can be write as a T10 square, which implies xz is equal to y square. Hence proof. Next is 18. Find the sum to n terms of the sequence this. Question number 18. 8 plus double 8 plus triple 8 and so on. Implies Sn is what? 8 plus double 8 plus triple 8 and so on. Then Sn is equal to 8. 8 को हमने क्वेश्चन सर 11 क्वेश्चन में जो साइन है उसका मतलब क्या है? 11 क्वेश्चन में बेटा जो साइन है, इट्स अबाउट द समीशन. समीशन इज रिप्रेजेंट फॉर अबाउट द कलेक्शन ऑफ डेटा, बट इट्स फॉर अबाउट ओनली द सम. जब हम किसी डेटा का कलेक्शन करके उसका सम करते हैं, देन इट्स कॉल्ड समीशन. एंड इट्स अबाउट इन ऑर्डर ऑल्सो. आप उसमें ऑर्डर को भी मैटर करते हैं. अगर आप ऑर्डर को मैटर नहीं कर रहे हैं, दैट मीन कि फिर वो समीशन नहीं कहलाएगा. 8 को हमने कॉमन लिया, देन इट विल 1 plus 1 1 plus triple 1 and so on. Implies, not implies, sorry, equal 8 by 9, 9 plus double 9 plus triple 9 and so on. 8 by 9, it can be write 10 minus 1 plus 10 square minus 1 plus 10 cube minus 1 and so on. बेटा n times बोला है क्या इन्होंने? नहीं, या n times बोला, ठीक है, फाइन. बेटा इन सबके आगे n times लिख लेना. मैंने इनके आगे n times नहीं लिखा है, आप इन सबके आगे n टाइम मेंशन कर लेना, बिकॉज ऑफ रीजन कि इट्स अबाउट n टाइम्स. 8 by 9, इट कैन, अब 10 वाली टर्म्स को एक साथ कर दो, देन मीन 10 plus 10 square plus 10 cube and so on plus n times. नेगेटिव है, माइनस 1 plus 1 plus 1 and so on n times.
equal 8 by 9. Give me a minute. टेन क्या है, इसका a भी 10 है और r भी 10 है, विच इज ग्रेटर देन 1. दैट मीन हम SN का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ये वाला. तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁻1 एंड 1 हमारा कितनी टाइम आ रहा है, n टाइम्स. दैट मीन n विच इज इक्वल टू 8 by 9, 10 by 9, 10⁻n−1 minus n. आंसर. आपकी बुक में आंसर एक स्टेप आगे कर रखा है, कोई बात नहीं, आप भी कर लो. 80 by 90, एक मिनट, 81, 10⁻n−1 and 8n by 9. The both answer are correct. फटाफट से कॉपी करो या स्क्रीनशॉट लो. We're gonna be discuss about the further queries. Can I rub that? Next, question number 11. Question number 19. Find the sum of the product of the corresponding terms of the sequence 248, 1632 and 128, 32, 821 by 2. Find the sum of the product of the corresponding terms. Two series are there, 248, 1632. Question number 19. Two, 4, 8, 16 and 32. And the other series is 128, 64,
not 64, sorry, it's 32. 8, 2 and 1 by 2. इनका प्रोडक्ट करो, दैट मीन 128 मल्टीप्लाई विथ 2, कॉमा 32 मल्टीप्लाई विथ 4, कॉमा 8 मल्टीप्लाई विथ 8, कॉमा 2 मल्टीप्लाई विथ 16, कॉमा 32 मल्टीप्लाई विथ 1 by 2. Implies 128 twice, that mean 256 and 64, 128, 64, 32, 16. There is a GP, ठीक है, जिसका आप सम फाइंड कर सकते हैं. अब इसका सम मैं नहीं करके बताऊंगा, जोड़ना बचपन से सीखते आ रहे हो आप लोग. क्वेश्चन नंबर 20. Show that the product of the corresponding terms of the sequence show that the product of the corresponding terms show that the product of the corresponding terms of the sequences, ध्यान से पढ़ना सवाल को, ठीक है, and this from a GP, form a GP and find the common ratio. Show that the product of the corresponding terms of the sequences, तो एक सीक्वेंस पहले दे रखी है, एक सीक्वेंस बाद में दे रखी है. फॉर्म अ जीपी, अगर एक जीपी फॉर्म करते हो देन फाइंड द कॉमन रेशियो, तो हमें एक कॉमन रेशियो फाइंड करना है. गिवन सीरीज क्या है, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर इज टू द पावर n माइनस 1. फर्स्ट सीरीज ये है आपकी, एंड सेकंड सीरीज है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर इज टू द पावर n माइनस 1. implies r square and so on, r raised to the power n minus 1. नीचे लिख देते हैं इसको बेटा, r raised to the power n minus 1, r raised to the power n minus 1 implies common ratio is T2 by T1. पहले तो ये चेक करना है इस फॉर्म जीपी फॉर्म करता है यानी ये कैसे मालूम चलेगा, अगर कॉमन रेशियो क्या आए, सेम आए, ठीक है, तो चेक कर लेते हैं. T2 by T1 यानी ए आर डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर ए आर, यहां से भी हमें आर मिल रहा है और यहां से भी आर मिल रहा है. implies common ratio is RR. Now query from 21 to 30. Any query is there from 21 to 30? Any query from 21 to 30? (28, 22). Okay. Any other? 22, 28. Any other queries there?
क्वेश्चन नंबर 22 गिवन है if the pth qth rth term of the GP are ABC, pth qth and rth term is ABC, ठीक है, then we have to prove a raised to the power q minus r minus p minus q is equal to 1. देखो TP क्या होगा, AR raised to the power P minus 1 AR raised to the power Q minus 1 और ये हो जाएगा AR raised to there is a problem, हमें कैपिटल R लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ रीजन देयर इज rth टर्म का सिंबल इज स्मॉल r, और इनको भी कैपिटल कर लो बिकॉज A ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है. इंप्लाइज वैल्यू पुट करो AR रेज टू द पावर P माइनस 1 की होल पावर Q माइनस R. फाइन. अब मैं ये ब्रैकेट वाला सिंबल दोबारा नहीं लगाऊंगा, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होगी बिकॉज अंदर बाहर की पावर्स हैं. तो डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, ए आर रेज टू द पावर Q माइनस 1 R माइनस P डॉट ए आर रेज टू द पावर R माइनस 1 रेज टू द पावर P माइनस Q विच इज इक्वल टू 1 लाना है हमें. ठीक है, तो चलो LHS से सॉल्व कर रहे हैं बेटा. ठीक है, तो ये हो जाएगा ए रेज टू द पावर Q माइनस R कैपिटल R रेज टू द पावर P माइनस 1 Q माइनस R डॉट ए रेज टू द पावर R माइनस P R रेज टू द पावर Q माइनस 1 R माइनस P डॉट a raised to the power P minus Q R raised to the power R minus 1 P minus Q. सॉल्व कर लो. देखो a की पावर ऐड हो जाएगी बिकॉज बेस सेम है, तो Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q डॉट R raised to the power P minus 1 Q minus R plus Q minus 1 R minus P plus R minus 1 P minus Q. A raised to the power 0 because Q से Q कैंसिल हो रहा है, R से R और P से P. Now dot R. इनको मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, इसकी भी पावर 0 ही आएगी. ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, रिजल्ट इज 1 which is equal to RH. Yes. (28) क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है लेट these two numbers are A and B. हमने वो दो नंबर्स लेट किए, वो बोल रहा है A प्लस B इन दोनों का सम. ठीक है, 28 में कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिकल मीन. तो दोनों नंबर्स का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, ऑब्वियसली रूट AB. इनका 6 टाइम्स है इनका सम. तो हमें ये बोल रहा है देन शो दैट दी नंबर्स आर इन रेशो. तो नंबर्स जो है वो इस रेशो में है. A by B are in ratio 3 plus 2 root 2 divided by 3 minus 2 root 2.
ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी बताते हैं, पहले ये कर लो, मैं रब करूंगा फिर। भैया 28 पूछा है, 27 पूछा है, 28 ही पूछा है ना? हाँ फाइन, कैन आई रब दैट? देखो, फ्रॉम देयर a plus b is equal to 6 times of root ab, ठीक है। नाउ कैन आई राइट दिस? देखो a प्लस बी हमारे पास अवेलेबल है, हमें a बाई बी निकालना है, देन व्हाट विल बी दी, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए? जरा इमेजिन करो, गिवन सिर्फ ये है और a बाई बी निकालना है, हाउ यू विल गोना बी डू दैट? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रोसेस को समझना है इसके, तो क्या करोगे बताओ? थर्टी वन 32 में तो थोड़ी कोई क्वेरी है आप लोगों की, 31 और 32 इनमें तो कोई क्वेरी नहीं है ना दोनों में से? है क्या 31 32 में से कोई क्वेरी? नो सर। देखो, अगर मैं इसको a माइनस बी की फॉर्मेशन में लिखूं तो ऐसे लिखने में आएगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखो प्लस में लाना है, इसका रूट कर देता हूं पहले तो, ठीक है। अब प्लस लाना है तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, प्लस 4ab, और ये किसके इक्वल होगा, a माइनस बी के, इम्प्लाइज a माइनस बी, ऐसा ही होगा क्या, a माइनस बी बराबर यही होगा क्या? तो वैल्यू पुट कर दें अब, a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 6 रूट ए बी का होल स्क्वायर, दैट मीन 36 ए बी माइनस 4ab का होल रूट, यही हुआ ना? इसको लेस करोगे तो कितना आएगा, 32ab, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 2ab, तो ये हमारा आ गया a माइनस बी, ठीक है। implies a plus b is equal to 6 root ab divided by a minus b divided by 4 root 2ab, इसको दे दो 1 इक्वेशन नंबर, इसको दे दो 2, और लाइन डाल देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन वाली लाइन को भी, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 implies a plus b divided by a minus b is equal to 6 root ab divided by 4 root 2ab। देखो अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या रह जाएगा, 6 बाय 4 रूट 2 पहले तो, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं,
3/2√2. Fine. Now by componendo and dividendo, एक प्रिंसिपल होता है जिसमें हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्या है वो समझा देता हूं पहले मैं आपको। यदि a बाई बी है इज इक्वल टू सी बाई डी के, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। ठीक है, एक बार प्रूव करके भी दिखा देता हूं मैं आपको कि ऐसा होता है क्या। देखो 1/2 इज इक्वल टू हमने लिया 2/4, है ना ये, तो ऑब्वियसली इसका सेंस क्या होगा, आप इसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं तो देखिए अगर ये अभी इक्वल है तो बाद में भी इक्वल ही होनी चाहिए, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/-1, यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 6/-2। देखो दोनों सेम ही तो है, तो ये जो प्रिंसिपल होता है ये होता है आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2√2। ठीक है, इंप्लाइज ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2b विच इज 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3 minus 2√2 implies it will be a by b which is equal to 3 plus 2√2 divided by 3 minus 2√2. Hence proof. इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम सम स्पेशल सीरीज जो कि नेक्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट हाफ स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज नाउ आई विल गोना बी क्विट द क्लास बिकॉज आपके दूसरे टीचर वेट कर रहे होंगे। इट्स 10:40। Okay, dear. Bye and good night. Sorry. Have a good day. Bye.